Hello students, today we'll continue our first chapter of class 9th science matter in our surrounding. So let us continue. Our next is changing states. क्या जो है जो मैटर की स्टेट्स हमने पढ़ी थी उनकी जो स्टेट है वो चेंज होती हैं अगर उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो क्या वो स्टेट्स चेंज होती हैं. लेट अस सी इन दिस वीडियो. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है. तो answer is yes, matter can change its state. Many times we have observed and we can take the example of water. When water freezes, it takes the shape of solid ice cube we can say, and then when the ice cube melts it changes into liquid, and liquid changes into vapor, water vapor as a gas. So matter can change its state. Yes, matter can change its state. Many times we have observed that when we see here we have an ice cube in solid form. When we kept it in open, it absorbs the energy from the atmosphere and changes into liquid. When it melts, it changes into liquid, and liquid evaporate and changes into steam called water vapor. And when this steam get cool by getting the energy from the atmosphere, it again changes into water, and that process is known as condensation. When steam becomes cool and changes into water again, that process is known as condensation. And water, when we freezes that water, it changes again into solids. So yes, the states of matter are interconvertible. Yes, we can say that states of matter are interconvertible. So let us see here the arrangement of particle in solid. They are tightly packed. They have more force of attraction between the particles of solids. When we heat this solid, it changes first into liquid and then into water vapor. When we cool this gas, water vapors, it absorb the energy from the atmosphere and become cool, and again changes into liquid, and we freezes this liquid, then again changes into solids. So from this way we can say yes, the matter can change its state. The states of matter are interconvertible. So let us see what are these status and what are these process when the states of matter changes. See here, changes of state. All the substance can change their state. These are the physical changes. और इन changes को हम क्या बोलते हैं. जब मैटर अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करता है तो उन चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. और जब मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, जब उसकी फॉर्म चेंज होती है, तो हम उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. मतलब आउटर अपीयरेंस जब उसकी चेंज होती है तो वो जो हम उसको देख सकते हैं, उसकी आउटर अपीयरेंस में जो चेंज आता है उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. फ्रीजिंग. फर्स्ट इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग मीन्स व्हेन अ सॉलिड changes in when a liquid changes into solid. For example, ice. When we freezes the water, it becomes solid, and that process is known as freezing. Melting. Melting means when this solid melts, when ice cube we kept in open, it melts and changes again into liquid, and this process is known as melting. If we boil the liquid, then it changes into water vapor, and that process is known as boiling. Evaporation occur when the particle escape from the non-boiling liquid and become gas. जैसे हमने सीज में देखा है, सी का वाटर जो है evaporate हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज evaporation. नॉन बॉइलिंग, जब हम उसको बॉयल भी नहीं करते लेकिन फिर भी जो है लिक्विड से जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. चेंजेस सब्सटेंस फ्रॉम गैस टू लिक्विड. जब वो गैस कूल होती है, किसी गैस को जब हम ठंडा कर दें तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. नेक्स्ट इज सब्लिमेशन. Sublimation is a process when a solid directly changes into gases without changing into liquid state. It directly changes into gases, यानी कि solid to direct convert into gas. That process is known as sublimation. So here we have six changes in state. First is freezing, melting, boiling, evaporation, condensation, sublimation. So these are the six physical
चेंजेस विच आर जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर में होते हैं। जब सॉलिड जो है लिक्विड से सॉलिड में जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग, और जब सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड से जो गैस, लिक्विड टू गैस जब कन्वर्जन की प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग, और जब वाटर विदाउट बॉइलिंग जो ऑपरेट होता है जो लिक्विड, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, और जब वो वाटर वेपर कूल होते हैं तो उस कूल होके वाटर बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, एंड देन सब्लिमेशन, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। आई होप दीज 6 states are clear to you. So what are the factors that affect the change of state? जो चेंज ऑफ स्टेट है मैटर की वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, वो जो स्टेट है वो कैसे चेंज होती है। तो किसी भी मैटर की स्टेट का चेंज होना डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर पे। फर्स्ट इज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है उस मैटर के, प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है दैट इज acquired by that matter. So these are the 4 factors on which the changing state of matter depends. First is temperature. Temperature representation of kinetic energy. Second is pressure, collision acting against the molecule. Volume, the space available for the molecule to move, and the number of molecules. ठीक है, so these are the 4 factors on which the state depends, the state of matter depends. So I hope this is clear to you. So let us discuss one by one how the temperature depends, how the changing of state of matter depends on the temperature. So let us see temperature. जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके molecules होते हैं, suppose we are heating the ice cube. If we heating the ice cube, and if then what will happen? जो पार्टिकल्स हैं उस आइस के अंदर, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हीट मिलेगी तो वो क्या होंगे, अपनी स्टेट से हिलेंगे डुलेंगे, यानी कि उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो टूटने में हेल्प होगी। जब वो टूटेंगे तो वो अपने जो स्पेस है उससे मूव करेंगे, they move from one place to another. When they move, the state of the matter starts changing. See, when the temperature of the reactant is increased, the rate of reaction increase. अगर हम जो आइस की क्यूब है उसको हीट करेंगे तो वो है चेंज, जो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट। अगर हम हीट भी नहीं भी करें, सपोज हम आइस क्यूब को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जो है एक रूम में रख देते हैं, व्हेन वी केप्ट इन ओपन द आइस क्यूब इट स्टार्ट मेल्टिंग. Why it start melting? Because it absorb heat from the atmosphere. The water molecules absorb heat from the atmosphere, and this energy helps them to change the form of that matter. The kinetic energy acquired by the particles from the atmosphere. If we heat the liquid, then the particles gain that kinetic energy from the heating. So because the kinetic energy of the particle increases, द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट मूव फास्टर. जब वो काइनेटिक एनर्जी उनको मिल जाती है तो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं. द नंबर ऑफ पार्टिकल विच अचीव्ड एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज. फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, उनके जो टकराने की, जो मूव करने की, जब उनको हीट सप्लाई की जाती है मॉलिक्यूल्स को तो वो फास्ट मूव करने लगते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की उनमें ज़्यादा हो जाती है और वो मूव करते हैं, अपनी जगह को छोड़ने की कोशिश करते हैं. The effective collision frequency between the particle increases, the rate of reaction will increases. जिससे अगर हम आइस को रूम टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे तो इट टेक्स मोर टाइम. इफ वी हीट इट देन इट मेल्ट्स easily and fast, because on heating they acquire more kinetic energy and they melt fast. So लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो जो आइस जब मेल्ट होती है उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है जब तक कि वो पूरी आइस का जो क्यूब है वो मेल्ट नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेम्परेचर सेम क्यों रहती है, क्योंकि जब हम उसको हीट कर रहे हैं आइस को तो वो जो टेम्परेचर है उसको टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स आइस के अंदर हैं वो जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं. तो वो जो है वाटर वो सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर, और जब तक वो सारी आइस मेल्ट नहीं होती तब तक जो है वहाँ का जो टेम्परेचर है राइज नहीं होता है. और जो वो हिडन एनर्जी है जिसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्व कर लिया है, उस हिडन एनर्जी को हम बोलते हैं
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि लेटेंट मीन्स हिडन, जो हिडन एनर्जी है वो है जो वाटर मॉलिक्यूल्स ने एक्वायर कर ली है बाय द हीटिंग, और वो तब तक सेम रहती है जब तक कि सारा जो वाटर आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट नहीं होती। क्यों? जो वाटर है वो बीकर का वो चेंज जो सॉरी टेम्परेचर जो है वो चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हीट अमाउंट ऑफ हीट है वो जो है उन वाटर मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्व कर ली है टू मेल्ट। सो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हीट है वो उन्होंने एब्जॉर्व की है, उस हिडन हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ heat energy that is acquired to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric at its melting point is known as the latent heat of fusion. Fusion means melt hona. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at its atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. तो तब तक जो है ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तक वो सारी आइस मेल्ट नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर एक जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. So this in this way when we heat the any state, the molecules of that matter gain the kinetic energy and move faster from one place to another. So this is the way. First is temperature on the change of state depends. Second, टेम्परेचर ऑल द पार्टिकल्स आर इन मोशन. जब हम उसको हीट करते हैं तो जो सारे पार्टिकल्स हैं मोशन में आ जाते हैं. एंड द पार्टिकल्स दैट आर हायर टेम्परेचर मूव फास्टर. जब पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं. टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ द मोशन आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो मोशन है पार्टिकल्स का वो भी इंक्रीज करेगा. द इंडिकेशन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज पार्टिकल गेन मोर एनर्जी. अगर जो एनर्जी गेन की है अगर वो कम हो जाएगी बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज. ज़्यादा एनर्जी गेन करने के कारण जो है उनका मोशन बढ़ जाएगा, और मोशन बढ़ने के कारण जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नाउ सेकेंड इज प्रेशर. नाउ हेयर वी हैव एक्टिविटी. सी हेयर this is contain the gases molecule. They are away from each other. When we apply the pressure on the gas molecules, they come in contact with each other. They becomes closer to each other. Now you can see here they become closer to each other in the vessel, and applying the pressure and reducing the temperature can liquefy the gases. So this is the pressure. When we apply pressure and reduce the temperature, जो gases हैं वो क्या हो जाती हैं? liquefy, क्योंकि they come closer to each other and they convert into liquid. So second factor is pressure. On how by this activity we observe that how pressure helps in interconversion of the state. स्टेट को चेंज करने में कैसे हेल्प करता है. when we apply the pressure on the gas molecule, they come closer to each other and reducing the temperature they can liquefy the gas. So temperature, first factor was temperature, second is pressure. Change of state. Melting. Matter can change from one state to another. Process by which solid changes into liquid is called melting. The process by which liquid changes into vapor is called evaporation. The process by which gas changes into liquid to cooling is called condensation. And the process by which the liquid changes into solid is called freezing. So here we have an example. See, the ice cube melts, then changes into liquid. Then again it evaporates and changes into gas. Then gas becomes cools on atmospheric pressure, and the cooling process is known as condensation, and again become liquid. And on freezing liquid it again convert into solids. So this is the whole phenomenon which happens again and again in the way, example of water. So what is the change in state? Sublimation. Sublimation, as we have learned earlier, change in state from solid. अब solid जब directly change हो जाता है liquid में, विदाउट चेंजिंग into liquid,
व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। सॉलिड जो है डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैस में, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसेस। और इसका एक अच्छा एग्जांपल है हमारा जो है ड्राई आइस। ड्राई आइस को अगर हम एक बाउल में रखें तो वो डायरेक्टली जो है चेंज हो जाती है। नाउ यू कैन सी डायरेक्टली चेंजिंग इनटू वेपर फॉर्म विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। इन दिस बॉल वी फॉर्म नो लिक्विड इन दिस बॉल आफ्टर converting it into vapor form. So here we kept that ice cube, dry ice, into this ball, and it's start vaporization start from it, and it changes into vapor form without changing into liquid. So here in this ball we will form no liquid. So when the liquid changes from solid form to directly into a gaseous form, solid to gases, that is known as sublimation. So always kept, if we heat the mixture of ammonium chloride, we have more example. If we heat the mixture of ammonium chloride and ammonium chloride ammonium chloride and ammonium if we heat ammonium chloride and camphor crush into a china dish and we heat it, then what will happen, जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगी और जो है सब्लिमेट हो जाएगी सॉलिड टू गैसेस फॉर्म। अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट कर दें तो वो डायरेक्टली जो है गैसेस फॉर्म में चला जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। सो here we have dry ice, an example of sublimation, and second is if we heat the ammonium chloride solidified and directly converted into gaseous form without changing into liquid. So these are the two examples of sublimation. So what is dry ice? It is a very important question. What is dry ice? तो ड्राई आइस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है ड्राई आइस। इट इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर और टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एंड दिस इज रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई ice. And it is a very important, what is dry ice. So what is dry ice? Dry ice is solid carbon dioxide gas. Solid carbon dioxide is known as dry ice. Second is freezing. Freezing, liquid become solid. लॉस ऑफ एनर्जी। अब हम जब हीट करते हैं तो किसी सॉलिड को जब हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और उनकी जो मोशन है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण जो है वो किस में फॉर्म हो जाते हैं, वेपराइज फॉर्म में। और जब वो वेपराइज फॉर्म में अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। और जब उस लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं तो उनकी एनर्जी बिल्कुल लॉस हो जाती है और वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल उनकी जो मोशन को क्या कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। और जब बिल्कुल उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो बिल्कुल जो है बिल्कुल लो टेम्परेचर पर जो उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो वो टेम्परेचर बिल्कुल कूल हो जाता है। तो वो जो है मैटर की जो स्टेट है वो जो है किस फॉर्म में चली जाती है, सॉलिड फॉर्म में। टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंजेस इनटू सॉलिड, जिस टेम्परेचर पे जो है जिस टेम्परेचर पे जो है सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में चला जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग। और उस टेम्परेचर पे वो जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पे जो है एक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो किस टेम्परेचर पे वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। वी हैव टू कीप इन माइंड। Now next is condensation. Condensation, the change in temperature, change in state of from gas to liquid. कंडेंसेशन क्या होता है, गैस का लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाना। जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी खो देते हैं तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म। कूलिंग ऑफ गैस, जब गैस ठंडी हो जाती है उसके पार्टिकल्स का मोशन कम हो जाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। टेकिंग हीट अवे, जो हीट को लेके गए पार्टिकल्स लॉस एनर्जी, जब वो अपनी एनर्जी को खो देते हैं तो वो जो गैस है वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में। द पार्टिकल्स ऑफ गैस, द पार्टिकल्स कैन गो फ्रॉम अ गैस टू लिक्विड इफ इनफ heat energy is taken away, and this process is known as condensation. Next is vaporization. Vaporization by the liquids to solid changes to gases. जब हम किसी लिक्विड को लार्ज सरफेस एरिया में छोड़ देते हैं तो वो जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है
और लार्ज सीज में आपने देखा है कि जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है, तो इस फॉर्म को वाटर के वेपर होने की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट का गैस स्टेट में चेंज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। नाउ ये कैसे होता है, सारे जो प्रोसेस थे ये कैसे सारे किस पे डिपेंड कर रहे थे, एनर्जी पे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स में जो एनर्जी आ रही थी वो किससे आ रही थी, बाय द हीटिंग, या फिर वो लॉस कर रहे थे बाय द स्लोइंग, या तो हम एनर्जी को बढ़ा रहे थे या कम कर रहे थे, और उस एनर्जी को हम कैसे बढ़ा घटा रहे थे, बाय द यूज ऑफ टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू गेन ना एनर्जी गेन और लॉस। सारा किस पे डिपेंड कर रहा था, एनर्जी गेन पे और लॉस पे। द चेंज स्टेट है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, या तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर लें या फिर उसको लॉस कर दें। टू चेंज द स्टेट द एनर्जी मस्ट बी एडेड और रिमूव्ड। Gaining or losing energy change the state of a substance. From this all these activity we have learned the सारा जो प्रोसेस है स्टेट चेंज का मैटर का वो किस पे डिपेंड कर रहा था, एनर्जी गेन पे और एनर्जी लॉस पे। द चेंज इन एनर्जी मस्ट बी एडेड, या तो हम एनर्जी को बढ़ा दें या फिर हम एनर्जी को कम कर दें। तो जो एनर्जी का गेन करना है और लॉस करना है उसके कारण ही जो है मैटर की स्टेट इंटरकन्वर्टेबल पॉसिबल हुआ। So here we have deep evaporation. Vaporization, when the change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is known as is called vaporization. Vaporization surface phenomena. Surface phenomena it depends on the surface कि कितनी जगह पे वो liquid फैला हुआ है. Particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction and changes to vapor. अब जो है जो वेपराइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो भी किस पे डिपेंड करेगी, मैनी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेट अस सी वन बाय वन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। फर्स्ट इज टेम्परेचर। बाय राइजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें लिक्विड का बाय हीटिंग तो क्या होगा, मोर द एनर्जी the particles water particles get more energy and move faster. So increasing in temperature directly proportional to the increasing in vaporization. Surface area, एक लिक्विड को हम उसमें जो है उसका जो सरफेस एरिया कम है और एक का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जो लिक्विड है किस में से ज़्यादा वेपराइज होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम जब किसी चीज़ को जल्दी बनाना होता है, सपोज हमें पानी गर्म करना है, तो एक हम ऐसा कंटेनर लें जिस पे जो है लेंथ ज़्यादा है लेकिन ब्रेड्थ उसकी कम है। वेपराइजेशन तो किस में ज़्यादा होगा, जिसका एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ वेपराइजेशन। सो सेकेंड फैक्टर इज सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा वेपरेशन फास्ट होएगी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स द वाटर द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द गैस इन द एयर। अगर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अगर वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे एयर में, तो जो है रेट ऑफ वेपरेशन का होगा, कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर ऑलरेडी कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स, सो इट एब्जॉर्ब लेस water molecules. So because it already contain water molecules, so it absorb less water molecules from the liquid. So if the humidity increases, the rate of evaporation decreases. It is inversely, humidity जो है inversely proportional है किसके वेपराइजेशन के, क्योंकि more the humidity less is the rate of vaporization decreases. Speed of wind, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी उतना ज़्यादा जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी, वाटर फ्लो करेगा, वाटर जो है वेपराइज होगा। इफ़ द स्पीड ऑफ द विंड बिकम मोर जो है ज़्यादा, अगर जो है स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, विंड ज़्यादा होगी तो जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो जो है वेपरेशन भी ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ लिक्विड, अब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नेचर ऑफ लिक्विड की, हम जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है। द रेट ऑफ वेपरेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन, अगर लिक्विड थिक है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका जो है रेट ऑफ वेपरेशन क्या होगा, कम। सो दीज आर द 5 factors on which the rate of evaporation depends. So let us, how does the evaporation causes cooling? अब हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वेपराइजेशन से कूलिंग कैसे होती है। सो
इन ओपन वेसल लिक्विड कीप्स ऑन एवेपरेटिंग। किसी भी ओपन वेसल में अगर हम लिक्विड को रख दें तो ऑन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो वो जो है एवेपरेट होता रहता है, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। कि एटमॉस्फेयर से वो जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते रहते हैं। एटमॉस्फेयर से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते रहते हैं हीट एनर्जी की फॉर्म में, एंड टू रीगेन द एनर्जी और लॉस्ट इन एवेपरेशन। और जब वो एवेपरेट होते हैं तो उस एनर्जी को लॉस्ट कर देते हैं। एंड दिस फिनोमिना द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द लिक्विड कूल। और ये जो फिनोमिना है एनर्जी अब्जॉर्व करने का सराउंडिंग से और लिक्विड को कूल करने का, इससे जो है लिक्विड कूल रहता है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन आता है, वाई डू वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर। जो अगर हम किसी ग्लास में आइस को भर के रखते हैं तो उस ग्लास के बाहर जो है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आइस वाटर है टम्बलर में, सून वी सी द वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, जब वो जो है ग्लास के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो अपनी जो एनर्जी है उसको लॉस कर देते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड स्टेट में। सो विच वी सीन एज अ वाटर ड्रॉपलेट। कि जब हम जब किसी कंटेनर में आइस रखते हैं तो उसके बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि जो सराउंडिंग में जो वाटर वेपर्स हैं जब वो ग्लास के सरफेस से टकराते हैं तो वो जो है अपनी जो एनर्जी है उसको लॉस कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? वाटर में। सो वी ऑब्जर्व द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द surface of that glass. So this is a very important question. Why do we see water droplets on the outer surface of the glass? It depends on the vaporization factor. So here we have one more example. It is also an important question. Why should we wear cotton clothes? कि हमें गर्मियों में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए? कॉटन जो है गुड एब्जॉर्वर होते हैं वाटर के, और ये जो है हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एक्सपोजिंग टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवेपोरेशन। ड्यूरिंग समर जो है हमें व्हेन वी प्रेस्पायर मोर, बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी जो है वो हमें कूल रखने में हेल्प करते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग एवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो जब वाटर वेपरेट होता है वो एनर्जी गेन करते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं? वेपर में, फ्रॉम द हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। और जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम द बॉडी से तो वो चेंज जो है कॉटन बीइंग गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एक्सपोजिंग द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवेपोरेशन। गुड एब्जॉर्बर होते हैं जो है अपनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं और बॉडी को जो है कूल रखते हैं। दिस इज़ वाई वी वेयर द कॉटन क्लॉथ्स इन समर। सो दिस इज़ ऑल फॉर द today. I hope this lecture is clear to you. For the next lecture we will discuss few more important definition. Till then, bye. If you like the video then subscribe the channel for upcoming video.